والی جان من توئی دانی کہ جز کو کش ندارم یا رسول اللہ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ. میرا خیال ہے کہ میں کوئی مسئلہ نہیں ایک میں پہلے ذرا سے دیکھو لے کر آج تک پریس کلب چکسواری کے کسی سابق یا حاضر رکن پر زرد صحافت کے حوالے سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکا. پریس کلب چکسواری کے قیام کے وقت اس کا شمار آزاد کشمیر کے گنے چنے پریس کلبوں میں ہوتا تھا. الحمدللہ 28 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد یہ پریس کلب آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن سے یہ بلا شبہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری عبد المجید صاحب کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے. ریسٹ ہاؤس کی صورت میں آج اس پلاٹ کے آپ نے کاغذات جناب صدر پریس کلب چکسواری راجہ نثار احمد خان اور ان کے ساتھیوں کے حوالے کیے. یہ بھی انہی کے دور میں یہ تین جو ہیں وہ نیو سٹی کے اندر اسلام گڑھ ڈڈیال اور چکسواری کے اندر جناب سید عابد حسین شاہ صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ان کی تحریک کا نہایت ہی کمال مہربانی فرماتے ہوئے جناب چودھری عبد المجید صاحب نے وہ پلاٹ لاز کیے. بعد میں دوسری حکومت کے آنے کے بعد یہ کام ٹھپ ہو گیا. پھر الحمدللہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ہمیں یہ مقام عطا کرنا تھا. نشاندہی کی کہ میں نے نام لیا. پھر اقبال صاحب میں دوبارہ آپ کے فرمائش میں نام لیتا ہوں. لیڈز کونسل برطانیہ کے کونسل محترم جناب محمد عارف. میں جس بھی مہمان کا جس بھی بھائی کا نام نہیں لے سکا معذرت چاہتا ہوں. آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے لیے قابل عزت ہیں. آج میرے لیے چکسواری کے عوام کے لیے میرے پریس کلب چکسواری پریس کلب کے لیے خوشی کا دن ہے اور صحافت کی تاریخ کا تاریخ ساز دن ہے. اگر جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے. ہماری وہ جدوجہد جو ہم نے شروع کی وہ رنگ لائی اور اس رنگ کو رنگ دینے کے لیے ہماری اس درخواست کو رنگین بنانے کے لیے باہر کرنے کے لیے ظفیر بابا نے جو کردار ادا کیا وہ آزاد کشمیر کی صحافت کی تاریخ صحافت کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. میں جناب راجہ عظیم اقبال صاحب کی شفقت کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہے. الحاج منشا صاحب نے جو ہمارے ساتھ شفقت کی میں اس شخصیت کا نام نہ لوں جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہمیں یہاں نیو ٹاؤن میں 2 کنال کا رقبے پر مشتمل پلاٹ پریس کلب چکسواری کے کاغذات صدر پریس کلب چکسواری نثار احمد خان کے حوالے دیے گئے. یہ ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اظہار تشکر کرنا بہت ضروری ہے. میں آزاد کشمیر کے سینئر ترین پارلیمنٹرین سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم چودھری عبد المجید صاحب کا دل کی اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منظوری دی اور آج ہمیں یہ پلاٹ جو ہے اس کے کاغذات ملے. تو اس پریس کلب نے چند سالوں میں اپنے قیام سے لے کر آج تک جو تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کی ہیں ان میں شاندار کامرانیاں اور کامیابیاں جو ہیں وہ 2 کامیابیاں ہماری جو قابل ذکر ہیں اور پریس کلب کی تاریخ میں وہ سنہرے عروج سے لکھی جائیں گی. جب تک یہ پریس کلب قائم ہے تب تک ہماری پریس کلب کی کتاب کا یہ حصہ ہوں گی. ایک جو ہمارا پریس کلب رجسٹرڈ ہوا اس کے لیے میں ظفیر بابا صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پریس کلب کی رجسٹریشن کے لیے خصوصی توجہ کی, خصوصی کاوش کی. میں
इस बड़े मजमे में, इस खूबसूरत महफिल में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सहाफ़ियों की जहाँ खिदमत की, आपने प्रेस क्लबों के लिए भी शानदार खिदमत अंजाम दी और आपने साबित किया कि आप आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं, और आपने बेहतरीन अपनी कायदाना सलाहियतों का इज़हार किया। राजा अदर इकबाल साहब की कावश का, इनकी शफ़क़त का अगर जिक्र न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। इस प्रेस क्लब के लिए जहाँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एहसान है, वहाँ यासिर मुमताज़ चौधरी साहब की भी कावश शामिल है, इफराज महमूद राजा साहब की कावश शामिल है, मेरे कायद, मेरे प्रेस क्लब के मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम, और मैं ये कहूँ कि हमारे चकसवारी प्रेस क्लब में रोशन सितारे और सखी साफ़ी अंसर मोहम्मद गजाली साहब का जिक्र न करूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ होगी कि हमें जिसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात का मुझे एहसास है कि वक्त बहुत गुजर चुका है और वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, लेकिन यकीन जाने आज की इस महफिल में मेरे जहन में बहुत सी बातें थी जो मैंने करनी थी, लेकिन जिस तरह स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा, गजाली साहब ने कहा कि मैं आज अमजदी चौधरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारा साथ दिया। तो अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो मैं अपने प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं प्रेस क्लब चकसवारी का मेंबर हूँ, जिसके मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान है। और जिस तरह जिक्र किया इसहाक साहब ने, मैंने वो बातें टच नहीं की जिनका जिक्र गजाली साहब ने किया, इसहाक साहब किया, मैंने उन बातों को शामिल नहीं किया अपने अल्फाज में, लेकिन मैं अगर अपने अजीम उस्ताद का नाम न लूँ तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कोई नाम नहीं लेगा। तो मुझे अपने अजीम उस्ताद की शागिर्दी पे फ़ख्र है। मेरे अजीम उस्ताद सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद बानी सदर प्रेस क्लब चकसवारी रहमतुल्लाह अलैह, जो वो हमारे कायद थे, और जब तक हम जिंदा हैं आने वाली नस्लें चकसवारी के आम अवाम सूफ़ी रशीद साहब ने जो प्रेस क्लब चकसवारी का बुनियाद रखी और चकसवारी में साफ़त की जो बुनियाद रखी, और आज माशाल्लाह एक तनावर दख्त बन चुका है, ये मैं उन्हें आज खराज अकीदत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये उसके हैसियत से ही आ चुके ये आपका जो प्रेस क्लबों का और MDHA का जो आपके ये डिलीवर हो रहे हैं प्रेस क्लब इस्लामगढ़ और चकसवारी, इसमें प्रेस क्लब ही प्रेस फाउंडेशन की उस नुमाइंदे की हैसियत से, चूँकि इसके ज़ेर एहतमाम ही ये सारा प्रोसेस कमल हो रहा है, उसमें DG इजलास साहब और DG MDHA इनकी शफ़क़त, इन्होंने टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मुझे भी हुक्म किया, मैं भी उस हैसियत से आज मैं इस्लामगढ़ में भी ये बात कर चुका हूँ कि उस बंदे की जो कैफियत होती है, खुशी का आलम क्या होगा जिसके पास रहने के लिए कोई अपनी मलकियत नहीं होती, तो जब उसको अपनी मलकियत मैसर आती है तो उसकी खुशी का आलम, आज आप लोगों को वो खुशी मुबारक हो, आपको वो छत मैसर आने जा रही है, उसके लिए आपको एक खूबसूरत प्लाट मैसर आया अल्लाह ताला की नमत के तौर पे। और ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, सच्ची बात है कि आज इस जगह पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी मेहनतें, उनकी काफ़िशें, उनकी यकीनन वो खिदमात जो है वो नाकाबिल फरामोश हैं, और इस जगह पे बैठ के अगर उनका तज़किरा भी ना हो तो शायद महदूद रह जाए बात। और ये दोस्तों साथियों, अक्सर ये होता है कि हमारे जब कहीं जंगल में या कहीं को आग लगती है तो उसमें हर चीज़ झुलस जाती है, उसके बाद जो कोंपलें निकलती हैं, जो घास निकलती है, जो पौधों की कोंपलें होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत निकलती हैं, अल्लाह ताला उनमें उनके लिए बारें लाता है। तो ये हमारे उन लोगों की कुर्बानियाँ जो हमारे मुतासरीन मंगला डैम है, अगर मैंने इस्लामगढ़ में भी ये बात की, यहाँ भी ये बात करना चाहूँगा, ये उनकी कुर्बानियाँ यकीनन आप तमाम लोग उसमें शामिल हैं, उन मुतासरीन में। ये उन मुतासरीन की उन कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ताला ने हमें ये न्यू सिटी चकसवारी में, और फिर उसके सिले में आपको भी ये जो मैसर आया है प्रेस क्लब का प्लाट, अगर शायद वो उनकी खिदमात या उसकी कुर्बानियाँ ना होती तो शायद प्लाट लेने के लिए ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती। अब हम सब पे जो कलम कबीला के लोग हैं, जो कलम से लिखते हैं अपने कैमरे के ज़रिए, जो अपनी जो लोगों की आवाज़ में यकीनन आप लोग इससे पहले भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं कि आप मुतासरीन मंगला डैम की आवाज़ को ज़्यादा पुरज़ोर अंदाज में बात करेंगे। चूँकि DG MDHA भी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने जाना भी है, मैं पिछली महफिल में भी बात कर चुका हूँ ज़ैली कुंबाजात की, और यकीनन यहाँ के जो बेनिस्बत बाकी जगहों के यहाँ जो मुतासरीन का ये सेक्टर है, जो ज़्यादा तवज्जो का
मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको बात करनी चाहिए। और डीजी इतलात हमारे यहाँ पे बैठे हैं, यकीनन ये साफ़ियों के मसाइल से भी वाकिफ़ हैं। आज साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। ये हमारे सच्ची बात है कि हम छोटे थे तो उस ज़माने से हम इनकी शफ़क़त से मुस्तफ़ीद होते रहे। मेरे वाल साहब के दोस्त भी हैं, बाकी तमाम चेहरे शनासा, उसमें मैं नाम लेने मुश्किल और नागज़ीर हालात से गुज़र रही है। साफ़ी और सहाफ़त को बावकार बनाने के लिए हम सब को तगदो करनी होगी। आज की जो कामयाबी आप लोगों ने समेटी है, इसमें चकसारी के सदर प्रेस क्लब मोहतरम राजा निसार साहब, आप बहुत ही नसीब वाले हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे सदूर आए, आपके बाद भी बहुत सारे सदूर आएंगे, लेकिन जैसा कि बिस्मिल साहब ने फरमाया है कि आपके दौर में प्रेस क्लब रजिस्टर हुआ और आज आपने उसकी जगह के अलाटमेंट आर्डर वसूल किया। आपको अंसर गजाली साहब को, ख्वाजा साहब को और मोहतरम नौ मसीब सदर बिस्मिल साहब, आप समेत तमाम जो आपके प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं, अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, सबको मुबारकबाद हो। मेरी आप सबसे ये इल्तमास है कि ये जो छोटे छोटे आपके इश्यूज़ हैं, 2-3 अहबाब के साथ जो इस प्रेस क्लब के साथ शामिल नहीं हैं, कोशिश करें वो भी आपका दस्त बाजू बने, बर्दाश्त करें, तस्लीम करें। जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं इस मौका पर मोहतरम डीजी अतलात राजादर इकबाल साहब का इंतहाई ममनून हूँ, ममनून एहसान हूँ। इन्होंने हमेशा शफकत बरती है, हमेशा मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने के लिए, उससे हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए हल निकाला है। तो मैं इस पर इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो मोहतरम चौधरी मोहम्मद मंशा साहब, डायरेक्टर जनरल MDHA, आप, मैं इस्लामगढ़ में भी कह चुका हूँ कि आप नीयत वाले बंदे हैं, पीर और मुर्शिद वाले बंदे हैं। मंशा साहब, ये जिस जगह के आपने आज अलाटमेंट आर्डर इस्लामगढ़ और चकसारी प्रेस क्लब के हवाले किया है, आपसे पहले बहुत सारे डीजी साहबान जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने आपके नसीब में ये लिखा हुआ था और आपने वज़ीर-ए-आज़म वक्त सरदार अब्दुल मुनियादी साहब से इसकी मंजूरी ली। इसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट में लेके गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके गए, वहाँ से आपने ये मसला हल करवाया जो अरसा दराज से रुका हुआ था। आपने इस्लामगढ़ प्रेस क्लब की तकरीब अलफरदारी में कि इस प्रेस क्लब के हवाले से ये प्रोसेस तो काफ़ी अर्से से जारी था इसकी जगह के हवाले से, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और आपसे पहले चौधरी मजीद साहब ने या जिन अहबाब ने इस पर, यासर साहब ने या जिसने भी कोशिश की, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। रहा बात, पहले भी हमने बात की थी और फिर बिलखसूस जो आप एलियाना इलाका यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आपका भी शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया चौधरी मंसूर साहब ने जाना है। 2-3 बातों में शॉर्ट सी जगह मिल गई है और यहाँ पे बात हुई अदारों की। अब ये एक अदारा बना है, ये रेस्ट हाउस बना है, बड़ा अच्छा बन गया, इसको लोग याद रखेंगे। इसी तरह जो चकसारी प्रेस क्लब है, बड़ी मेन जगह पे आपको जगह मिल गई है। जो सदर हैं और जो हिस्ट्री आपने बयान की, सच्ची बात है, मैं बिल्कुल वाकफ़ हूँ और मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ सूफी रशीद साहब और जिन अहबाब ने जो कोशिशें की, लेकिन आप लोगों ने इस पे फ्रंट फुट पे आके जो काम किया, आज ये रजिस्टर्ड भी हो गया, इसका प्लाट भी मिल गया। अभी आपने इसको अदारा बनाना है, अदारा रूटीन का नहीं बनाना है। मैंने वहाँ पे इस्लामगढ़ में भी अमजद साहब से भी बात की है कि आप विज़िट करें, आप लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में जाएं, सिर्फ इसको खबरों के हद तक महदूद नहीं करना, ये खूबसूरत पहले इसकी डिज़ाइनिंग करवाएं। और डिज़ाइनिंग में ख़ास कर देखें ना, अदारे अशरों तक याद रहते हैं। मतलब ये रेस्ट हाउस बन गया तो कितना अरसा जो है ना, वो इनके बनाने वालों को, जो मजीद साहब को लोग याद रखेंगे। तो ये अदारे किसी इलाके की पहचान होती हैं। इस अदारे को हमने स्टेट ऑफ आर्ट बनाना है, इसकी आप डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें जहाँ पे आपने
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके जितने सोशल मीडिया, इसके मुख्तलिफ सेक्शन बनाएंगे। वहाँ पे इसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वहाँ पे इसकी लाइब्रेरी, फिर अदबी नशिस्त, शेर व शायरी, ये सारे उसमें पोर्शन अभी आप मैं यही कहूँ कि आप किसी प्रेस क्लब का विज़िट करके ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करें। वसाइल अल्लाह ताला जब आप अदारे बनाने पे आते हैं तो वसाइल अल्लाह ताला मुहैया करता है, मुखैर हज़रात भी करेंगे, प्रेस फाउंडेशन भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी, और फिर आपका वीएन भी है, फिर बाहर भी लोग हैं। लेकिन बुनियादी ये है कि आप एक स्ट्रक्चर, एक आइंदा 50 साल ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के जो है ना उसकी आप डिज़ाइनिंग करवाएं। और जो आपने कहा कि तारीख, बिला शक शुबा हम तो इसके गवाह हैं कि चेक्सवारी प्रेस क्लब के अरकान ने हमेशा पॉजिटिव जो है सूफी रशीद साहब से लेके आज तक मसाइल की निशानदेही की, इलाके के मसाइल के हवाले से बात की, जो पॉजिटिव गवर्नमेंट ने अच्छी बातें की उनको उजागर किया। इस पे भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आजकल बड़ा मुश्किल दौर है जर्नलिज्म में भी, सहाफ़त में भी, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी आपने उस पॉजिटिव चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे दोस्त बैरिस्टर आबद साहब जो बर्मिंघम से जीते, बैरिस्टर करामत साहब। बैरिस्टर कलामत साहब उन्होंने नाम तो कुछ नहीं लवाई है नाम बैरिस्टर कलामत साहब ते मैं वैसे मैंने जल्दी जाना था, बैरिस्टर कलामत साहब को देख के मैं बैठ के मैंने कहा ना कुछ नहीं बाली ना इन्ना के ना नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो अहदेदारान नौमुंतखब सदर जनरल सेक्रेटरी हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप नई टीम आई है जो साबका उम्मीदवारान है, सीनियर साफी साहब, मैं गजाली साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जब इस्लामगढ़ प्रेस क्लब ने हलफ लिया जनाब सदर रियासत साहब की मौजूदगी में, उन्होंने भी हुक्म दिया और मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला आपको प्रेस क्लब का जो प्लाट है वो मैं इंशाल्लाह ताला बोर्ड ऑफ गवर्नर में लेके गया और वहाँ से मंजूरी लेके आज कागजात आपके पास पहुँच चुके हैं। और जब चकवाड़ी में आया तो मेरे अंकल है हाजी फजल हुसैन साहब, इनसे मैंने वादा किया, इन्होंने कहा कि जी हमें प्लाट दें, आप यहाँ है भी है जगह, तो इन्होंने हुक्म किया तो फिर मैंने डडियाल से किसी ने मांगा नहीं अभी तक, तो ये इनके हुक्म पे मैंने कोशिश की अपनी, और अल्लाह ताला ने इसमें मुझे कामयाब किया। बिलाशुबा अगर साबिक़ वज़ीर आज़म HOMG साहब यहाँ जगह मुख्तस ना करते तो ये प्लाट किसी सूरत आपको नहीं मिलना था। उन्होंने ये आपके लिए तोहफ़ा दिया, और इसको अमली जामा, क्योंकि ये लेट हो चुका है काफ़ी, इसको इतना देर होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल हमने कोशिश की और हमने मिलजुल के DG इतलात साहब ने, प्रेस फाउंडेशन के मेम्बरान और सब ने मिल के हमने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। क्योंकि हमारा अदारा बोर्ड ऑफ गवर्नर के दरमियान ही घूमता है और वही चेयरमैन हमारे वज़ीर आज़म वक्त होते हैं, तो उसमें जो फैसले होते हैं अलाटमेंट के, ये उसके कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इसमें बात की है सफ़ीर बाबा ने, मैंने आगे वो अमजद साहब, क्योंकि मेरे भांजे ही हैं समझो, तो नवज़ार नियाज साहब मेरे भाइयों से बढ़ के थे, तो उन्होंने कहा, तो क्योंकि वो थोड़ा एरिया से पोषण हुआ है, इतने वाल अमीर बंदे ना आरो साहब भी बैठे ना, हाजी फजल साहब भी है ना, वैसे करामत साहब बैठे, बाकी भी माशाल्लाह अब यासर मुमताज़ साहब भी बड़ी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो भी हिस्सा होगा हम डालेंगे। 10.5 साहब को करोड़ों की मालियत का प्लाट मेन रोड पे मिला है। अजहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये प्रेस क्लब आप मिसाली बनाएं, क्योंकि इतनी जगह किसी भी प्रेस क्लब के पास नहीं है। इसमें आप स्पोर्ट्स का, जैसे बैडमिंटन का हॉल बना सकते हैं, टेबल टेनिस भी बना सकते हैं, ताकि जो साथ साथ सहाफ़त को, क्योंकि खेल ही ऐसा एक है जिसमें बंदे का जहन फ्रेश होता है और मज़ीद एक्टिव होता है, तो ऐसी मिसाली बिल्डिंग बनाएं। इसमें जो आप नक्शा पास करवाएंगे, जो हमसे मदद अपनी टेक्निकल टीम से जो लेना चाहेंगे वो भी हमको आपको मुहैया करेंगे। तो जो खालिद चौधरी साहब ने बात की मसाइल के हवाले से, तो क्योंकि ये बिलाशुबा रेस्ट हाउस बड़ा खूबसूरत जगह पे बनाया उस वक्त के वज़ीर आज़म के वज़ीर साहब ने,
تو اس کی جب میں آیا تو حالت دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ پچھلے عرصے میں سے کسی نے توجہ نہیں دی. تو میں جب پہلا وزٹ کیا میں نے یہاں، تو میں واش روم میں گیا تو میں نے بیسن کی نلکا کھولا اور شاور سے پانی آ رہا تھا. پھر میں نے اپنی ٹیم کو بتایا، تو انشاءاللہ اس کی رینوویشن بھی ہم کر رہے ہیں بہت جلدی. اس کو بھی ان دنوں میں اس کو بہتر یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ بھی پلاننگ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس میں باقی ذیلی کمباجات کا معاملہ ہے، میٹ پر چکسواری اور اسلام کا ڈڈیال کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کوشش لگی ہوئی ہے. یہ کیونکہ حصہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی جاتا ہے. اس میں صدر ریاست بحث الفرقان نموچوئی صاحب نے الیکشن میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ذیلی کمباجات کا حق ہم دیں گے. وہ متاثرین منگلہ ڈیم کے ساتھ روز اول سے لے کے ابھی تک کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی مسائل ہیں ڈیولپمنٹ کے، آپ کے مقامی ایم ایل اے نے اور جو سینئر نائب صدر ہیں ظفر انور صاحب، انہوں نے بھی نشاندہی کی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہم نے اس بجٹ میں رکھے ہیں. تو باقی جو نیو سٹی جتنے بھی ٹاؤن ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ کسی میں تفریق نہیں ڈالوں گا، سارے ٹاؤن کے ساتھ یکساں سلوک کروں گا. اور کوشش یہی ہے میری کہ جتنے متاثرین منگلہ ڈیم ہیں کم از کم دفتروں میں جو ان کے مسائل ہیں چھوٹے موٹے، ان میں وہ الجھے نہ، انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اور میرا دروازہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو آخر میں اجازت چاہوں گا آپ سے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ سنگ بنیاد جب رکھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جناب